Good morning, students. Today's topic is factorization. Already we have completed some questions of factorization. This is in worksheet number 6, and today we will start from question number 13. Already we have seen up till question number 12. So question number 13 is factorize such type question. So first of all, already we have discussed it is looking under which identity. So this is a square minus b square. So we will apply that identity. A square minus b square is equal to a plus b and a minus b. And now we will compare here with our identity. What is here a? Instead of a only. What is of b? Instead of b here b minus c. So this will be b minus c whole square. So b minus c means this is b. Instead of b minus c. So what is the expansion of this identity? In one it is a plus b and another is a minus b. So a plus b means a plus b minus c, and another a minus within bracket b minus c means a plus b and a minus b. Our b is this, and now we will open the bracket. So after opening the bracket a, and this is positive sign, so both the results when we will open it will be same, b minus c only. And when we will open this, the result will be a negative sign is there. So when we will open this, b will become minus b, and this c will become negative of the negative, it will become positive. So positive c. So a plus b minus c and a minus b plus c. Now question number 14. This is 25m square minus this. It is same. What is the difference? This is not given in whole square form. So first of all we will make it whole square. That is 5m. 25 means it will become 5m. So I have written here 5m whole square, and this as it is, right? So now it is also, now this question will be solved like this question. Here what is a? A is your 5m. And what is b? Your b is 4n minus 3l, and with the same identity like this type you will solve this. Now question number 16. Now you take care of this exercise. These are all are different types and very interesting also and difficult also. So you have to see this video again and again and try to understand, otherwise you will face difficulty. So question number 16, once again it is looking very long. So think over this, how we can solve this. So you are observing here, this is coming under one identity, and this side another, we can write this 5p whole square. So if it is square, so this will also become 1 square, then we can apply a square minus b square. But this is this can we write square form? So yes, we can write square form. This is identity form of second in the expanded form. How? You see, this is a square minus 2ab plus b square form. This is, so that will become a minus b whole square. So it will become 8m. Already you have solved this. In previous worksheet you have solved only this much. In this worksheet this is the combination of two questions. इस वर्कशीट में दो क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है. ये एक अलग क्वेश्चन था पहले, इसका पहले फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा 8m और ये 9n को होल स्क्वायर, 8m को होल स्क्वायर, और ये मिडिल टर्म को वैसे लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, ये इतना ही आएगा 144. तो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट वी कैन राइट, ये लिख सकते हैं 8m माइनस 9n का होल स्क्वायर. इसी का ये एक्सपांडेड फॉर्म है. तो ये आइडेंटिटी लिख दिया हूँ. यहाँ a और b नहीं लिखा हूँ. a विल बी 8m एंड b विल बी 9n. तो ये इसका आइडेंटिटी हो गया. अब इसके बाद ये क्या हो गया, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरा ब्रैकेट में a माइनस b. तो हियर आई एम नॉट पुटिंग हियर ब्रैकेट, क्योंकि ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए लगाए थे a प्लस बी में क्योंकि यहाँ दो स्टेप था. यहाँ ये आपका a है और ये आपका b है. इफ़ यू वांट, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे और ओपन करोगे, तो जब ओपन कर रहे हो सिंगल है तो दिस विल नॉट इफेक्ट.
तो ये आपका ए है और ये आपका बी है। अदरवाइज एक बार चलो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं और ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। ये आपका ए और ये आपका बी। तो जब इसको ओपन करोगे तो इतना ही आएगा 8m माइनस 9n प्लस 5m, और यहाँ पे 8m माइनस 9n माइनस 5p। ये दिस इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 टू 17, 18, 19, 20 इधर का जो क्वेश्चन है अलग पैटर्न में है। इसको यू ऑब्जर्व दिस इज लुकिंग अंडर विच आइडेंटिटी। तो ये जो एक आइडेंटिटी पढ़े थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी का फॉर्म में दिख रहा है। तो आई हैव रिटेन उसी का उल्टा आइडेंटिटी लगाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ऐसे इसलिए लिखेंगे बिकॉज हम लोग को फैक्टराइज करना है, तो यही फैक्टर फॉर्म है, दिस इंटू दिस 2 टाइम्स। तो इसको अब, बट ये करेक्ट फॉर्म में नहीं है अभी, वी हैव टू राइट दिस इन एग्जैक्ट दैट फॉर्म ऑफ दिस। सो चलो इसको ट्राई करते हैं। 16x को व्हाट वी कैन राइट, जस्ट अ मिनट, इट इज m r x, लेट मी सी। 17th question, this is x है, so this I have written, this all will become, ये x रहेगा, this is y और z, this is x, so ये this is x and this is also x as per book. So ये 4x, this 9y will become 3y and this 4z will become 2z का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट आवर ड्यूटी विल बी टू मेक दिस होल स्क्वायर। आफ्टर होल स्क्वायर इसको अब स्प्लिट करके लिखेंगे इस फॉर्म में 2ab। तो ये हमारा a बन गया, ये हमारा b एंड दिस इज अवर c। अच्छा, ये सब पॉजिटिव है तो ये भी आपका सब पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना कि कैसे नेगेटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी पॉजिटिव है तो अवर दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। दिस क्वेश्चन सी केयरफुली, ये सारे क्वेश्चन केयरफुली देखो, क्योंकि सब क्वेश्चन में थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है तो इसको बार बार देखना है। सो सी दिस, ये हो गया आपका दिस, हम लोग कहाँ पहुँचे थे, दिस इज m नहीं है, दिस इज x है और यहाँ भी ये x है, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन देयर m। हाँ, नाउ ये आपका 2ab, a आपका 4x, b 3y प्लस 2bc, 2b ये b है, 2bc, 2ab 2bc, तो ये 2bc में हो जाएगा, जस्ट मिनट, दिस इज xy yz zx, सो 2ab 4x इंटू 3y प्लस 2 इंटू दिस BC फॉर्म, AB के बाद BC, तो BC मीन्स 3y इंटू 2z प्लस ये इतना ही आएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 yz प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू CA फॉर्म, C कितना है 2z इंटू आपका ये 4x। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेम 16, 2 2 4, 4 4 16 zx। अब ये राइट हो गया। तो ये एक्सपांसन, ये नंबर इसी के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसी को होल स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आई हैव रिटेन। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यही क्वेश्चन नेगेटिव के साथ है, देन हाउ वी विल सॉल्व। तो लुक केयरफुली, 4a स्क्वायर गिवन प्लस बी प्लस 25। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको 2a का होल स्क्वायर, अभी ये माइनस लिखा हूँ, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, पहले b ही लिखे रहो, ये b का होल स्क्वायर 5c का होल स्क्वायर। बट वी आर ऑब्जर्विंग हियर नेगेटिव आ गया, लेकिन हमारा आइडेंटिटी तो इट इज़ फॉर पॉजिटिव। तो नेगेटिव को कैसे सेट करते हैं, ध्यान से देखना। 2 नेगेटिव मिलेगा हर क्वेश्चन में, एवरी क्वेश्चन में ऐसे में 2 नेगेटिव मिलेगा, एक नेगेटिव नहीं रहेगा।
तो दो नेगेटिव जब रहेगा तो इसमें देखो ए बी और बी सी, तो विच लेटर इज कॉमन वही नेगेटिव बनेगा। फिर से सुनो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या है 4ab और ये क्या है 10bc, तो ये b और b दोनों में कॉमन है। तो जो नेगेटिव साइन वाला है उसमें जो लेटर कॉमन होगा ए बी सी में, एक्स वाई जेड में, वही टर्म आपका नेगेटिव बनेगा। मतलब ये b दोनों में b है, तो ये जो भी यहाँ पे b रहेगा, b के जगह में जो भी रहेगा उसको नेगेटिव बना देना है। तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी प्लस बाकी सब पॉजिटिव रहेगा, तो ऑटोमेटिक ये इसी में सेट हो जाएगा। अब देखते हैं 2 to the 4, 4 माइनस ए भी आ गया, 2 इंटू बी सी कर दिए तो 2 इंटू 5 to the 10 माइनस बी सी आ गया। और इसको 2ca किए तो 2c का वैल्यू क्या है यहाँ क्वेश्चन में 5c और a का वैल्यू 2a, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा 5 to the 10 और 10 to the 20, 20ca। तो ये आपका ऑलरेडी उसी में सेट ही रहेगा। ओनली यू हैव टू डिसाइड, आपको बस इसी को ध्यान देना है ए बी सी, और इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे ऑटोमेटिक वो सेट होगा। तो ये आपका ए, ये आपका बी, अब सी है, उसी को लिख दिए स्क्वायर करके। नाउ ये आपका हो गया। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ विच विल बिकम नेगेटिव इन क्वेश्चन नंबर 18 आई हैव नॉट सॉल्व। 18 में देखो, सी हियर क्वेश्चन नंबर 18 है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z, ये हरदम पॉजिटिव रहेगा। दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, पहले 3 स्क्वायर वाला। आफ्टर दैट इसमें दो नेगेटिव बोला था, देखो -4xy और -6zx, तो विच लेटर इज कॉमन yz zx, तो z कॉमन हो गया, z कॉमन हो गया, मतलब ये लास्ट वाला टर्म नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर रहेगा, 4y स्क्वायर क्या बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर, और ये 9z स्क्वायर क्या बनेगा 3z, और यही नेगेटिव बनेगा क्योंकि यहाँ xy और yz है, तो ये ये zx और xy, तो इसमें कॉमन इसमें कॉमन क्या है xy, और ये दोनों नेगेटिव है, -4xy माइनस zx xy, x वाला कॉमन है, तो ये पहला नेगेटिव बन जाएगा। तो -x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस, जो कि हम लोग इसको x स्क्वायर भी लिख सकते हैं और -x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि हमारा जो नेगेटिव बनेगा, कोई एक इसमें से नेगेटिव बनेगा तीनों में से, तो कौन बनेगा, जो रिपीट होगा नेगेटिव साइन में x y और zx, x रिपीट हुआ है तो पहला वाला माइनस हो जाएगा, दूसरा ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पॉजिटिव है। a का वैल्यू क्या होगा a, b का वैल्यू b/2 का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर अपॉन 9 क्या हो जाएगा c/3 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर यू कैन, पहले जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देख के ही आंसर बता दोगे। कैसे इसका आंसर क्या होगा, देखो a + b/2 + c/3 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। सब में आंसर देख के बता दोगे जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तब। तो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर एंड टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फैक्टराइजेशन। इसको पढ़ के रखना। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन इज अनदर आइडेंटिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वी विल यूज इन क्लास 9th एंड 10th आल्सो। वर्कशीट 7 को पढ़ के रखना। इसका जो ये है दिस हाउ टू सॉल्व, ये फैक्टराइज जो करने का है मेथड दैट आई विल एक्सप्लेन, और यहाँ तक आप होमवर्क कर लो। ओके।